ہوگا اس میں ہاؤس تھا. خوش آمدید ابھی سبھی لوگوں کا، سبھی اسٹوڈنٹس کا. آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں آج کے اس لیکچر میں. آج کا جو لیکچر ہے ہم بات کریں گے حقیقت پسندی یعنی ریئلسٹ اپروچ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. انٹرنیشنل ریلیشنز میں دو اہم تھیریز یا دو اہم آئیڈیالوجیز یا آپ دو اہم اپروچ کہیں، ان کو اہم کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک آئیڈیلزم اور دوسرا ریئلزم. دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہے. حقیقت پسندی اور آئیڈیلزم. اب یہ حقیقت پسندی کیا ہے وہ آج کے اس لیکچر کا مدعا ہے، آج کے اس لیکچر کا ٹاپک ہے. حقیقت پسندانہ یعنی آئیڈیلسٹ تھاٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز نقطۂ نظر اقتدار کی سیاست کو بین الاقوامی تعلقات کے تمام اور اختتام کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کو کہا جاتا ہے کہ شروع یہی ہوتا ہے اور اختتام بھی یہی ہوتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کی شروعات بھی اسی ریئلزم سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اسی سے ہوتی ہے. اور تمام نظاموں میں جس پہ طلبہ اور اسکالرس نے بڑے پیمانے پہ بحث کی ہے وہ طاقت یا حقیقت پسندہ نقطہ نظر تھا. اور جب بھی آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج سے لے کر اس سے پہلے جو بھی دور تھا ہمیشہ سے ہی انٹرنیشنل اسکالرس کا اور اسٹوڈنٹس کا ہمیشہ اس پہ زور رہا ہے. اس ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ پہ وہ بحث کرتے رہے. ہمیشہ سے ہی ایک اہم نقطہ نظر مانا جاتا ہے بین الاقوامی تعلقات میں. حقیقت پسندانہ روایت جسے کبھی کبھی ہم سیاسی حقیقت پسندی بھی کہتے ہیں، یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ اس کو ہم کئی بار سیاسی حقیقی پسندی یعنی ریئلسٹ پولیٹیکل ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں. بین الاقوامی سیاست کا قدیم ترین نظریہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. اور یہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ یہ جب آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ہمیشہ سے یہ سب سے پرانا اپروچ سب سے پرانا تھاٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اس کا پتہ اگر ہم اس کو ہسٹری میں دیکھے جائے تو کئی ساری مثالیں ملتی ہیں. اس میں دو اہم مثالیں یہاں پہ جن کا میں ذکر کروں گا. ایک ہے تھائساڈیس اور جس نے پیپولیسین وار میں اس کا ذکر کیا تھا، اور دوسرا ہے جس کا کلاسک میں جنگ آف آرٹ، یہ جو ہے آرٹ آف وار، جس میں چین کے ایک مشہور فلاسفر نے سینزو کی نے اس کا ذکر کیا ہے. ان چیزوں کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ان دو اسکالرس میں ہم ان پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں کا اس چیز کا ذکر کیا ہے، اس ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا کیا ہے. آرٹ آف وار جو سنزو کی ایک مشہور کتاب ہے، اور تھائسیڈیس نے اپنے پیلوپینیشین جنگ کے بارے میں جب کہا تو اس میں ان ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ اس کی مثالیں وہاں پہ بھی ملتی ہے. جہاں آئیڈیلزم جس کی میں پہلے ابھی کہہ رہا تھا کہ آئیڈیلزم بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے، بالکل اپوزٹ ہے ریئلزم سے، اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو اخلاقیات سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. یہ جو آئیڈیلزم ہے یہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، جو بھی بین الاقوامی تعلقات ہے، اس پہ کس سے زور ملنا چاہیے، کس سے رہنمائی، وہ ہے اخلاقیات سے، مورالٹی سے. آئیڈیلسٹ اسکول آف تھاٹ جو کہتا ہے مورالٹی سے زور دینا چاہیے. مگر اس کے برعکس جو ریئلزم ہے یا جو حقیقت پسندی کا کنسپٹ ہے یا تھاٹ ہے جس کی آج ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اس کی بنیاد اقتدار، سیاست اور قومی مفادات کے حصول پہ. وہ کس بات پہ زور دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے یہ صرف یہ دو اہم چیزوں پہ اس کے پہ مبنی ہے. ایک سیلف انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ.
पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। जो हकीकत पसंदी है ये दो अहम चीजों की बुनियाद पे जोर देता है। वो कहता है कि जो भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है वो दो अहम चीजों से डिटरमाइन होते हैं, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट और दूसरा नेशनल इंटरेस्ट। इसका मरकजी मकरूज ये है कि रियासत बैनुल अक़वामी या आलमी सतह पर अहम किरदार है। और ये किस बात पे जोर देता है कि कहता है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं या वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखते हैं तो ये इस बात पे जोर देता है कि जो भी हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका मकसद है सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट। और खुद मुख्तार होने के नाते एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पे काम कर सकती है। ये जो नेशन है, ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है, ये कहती है कि एक मुल्क को एक खुद मुख्तार तौर पे काम कर सकती है। कौम परस्ती के उरूज और जदीद कौमों की रियासतों के ज़ुहूर ने रियासत को एक मरबूत सियासी बरादरी में तब्दील कर दिया है। बाकी तमाम वफादारियां और रिश्ते कौम के मातहत है। तो कहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में वो आइडियलिस्ट, वो सेल्फ इंटरेस्ट पे डिटरमाइन होता है। और जो सेल्फ इंटरेस्ट आइडियलिज्म रियलिज्म जो है जिसकी बात करता है कि जो भी आप करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कौमी मफाद के तहत होना चाहिए। दो अहम स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जिन्होंने इस रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद डाली। उनमें E.H. कार और दूसरे हैंस मार्गन्थो। दोनों हकीकत पसंद उलमा हैं, स्कॉलर्स से, दोनों ने ही इस थॉट की बुनियाद डाली है। दोनों का ये मानना है कि खास तौर पे बैनुल अक़वामी और कुदरती आहंगी में मिसाली अकीदे के बारे में सख्त तनकीद करते हैं। E.H. कार ने इस्तेदलाल किया कि बैनुल अक़वामियत और जंग के दौर में इज्तिमाई सलामियत में सादा एतमाद ने बहरू कायनूस के दोनों अतराफ की सियासत दोनों को जर्मन तवसी पर काबू पाने के लिए समझने और अमल करने से रोक दिया। असल में ये दोनों कहते हैं कि बैनुल अक़वामी ताकत जो है हमेशा से मुल्क अपने मफाद को लेकर कोई भी हरकत कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है। कोई भी एक्शन एक नेशन की जस्टिफाइड है जब तक वो अपने मफाद के लिए काम करे। हकीकत पसंद इस बात पे जोर देते हैं कि इसके बरक्स चूंकि खुद मुख्तार रियासत से ज्यादा कोई आला इख्तियार नहीं है, इसलिए बैनुल अक़वामी सियासत फितरी हालत में चलाई जाती है और इस तरह हम आहंगी नहीं बल्कि एनार्की, जिसको हम इंग्लिश में एनार्की की खुसूसियत है। एक एनार्किक आलमी निज़ाम वो है जिसमें हर रियासत को अपने मदद करने और अपनी कौमी मफाद को तरजीह देने पर मजबूर किया जाता है। बुनियादी तौर पे रियासत की बका और इलाकाई दिफा के तौर पे यही वजह है कि हकीकत पसंद बैनुल अक़वामी मामलात में ताकत के किरदार पे इतना ज्यादा जोर देते हैं और वो ताकत को फौजी सलाहियत या ताकत के लिहाज से समझते हैं। ताहम बैनुल अक़वामी एनार्की का मतलब न खत्म होने वाली लड़ाई और न खत्म होने वाली जंग है। इसके बजाय हकीकत पसंदों का असरार है कि रियासती निज़ाम के अंदर तनाज़ात का इश्तिहारात में ताउन का अंदाज बुनियादी तौर पे ताकत के तवाज़ुन के तकाज़ों से के मुताबिक है। ठीक है, यह नजरिया तस्लीम करता है कि कौमी सलामती के हुसूल में रियासतें ऐसे इत्तेहाद में दाखिल होती हैं जो अगर एक दूसरे के खिलाफ मुतवाजन हो तो तवील अरसे तक अमन और बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम को यकीनी बना सकती है। ताहम इस किस्म का आलमी निज़ाम फितरी तौर पे मुतहरिक है और जब ताकत का तवाज़ुन टूट जाता है तो जंग का मुमकिन नतीजा होता है। ठीक है, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा सकता हूं। एक बैनुल अक़वामी ये जो रियलिज्म है, ये कहते हैं कि जो कई बार लोगों का मानना है, स्कॉलर्स का मानना है कि कई बार लोग जब बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं, जो मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा, मैंने आपको समझाया, जब बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है तो उनका मानना है अमन
बहुत अरसे तक चलता है। बैलेंस ऑफ क्रेट यानी दो ताकतें एक दूसरे के साथ बराबर है, अब दोनों ताकतें जंग करना उनके लिए वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता अगर मैंने जंग छिड़ी तो दूसरा मुल्क जो मेरे बराबर है वो भी उसमें मेरी भी तबाही मुमकिन है। यानी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूक्लियर डिटरेंस भी कहते हैं, या जब कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर बन जाता है और उसके खिलाफ दूसरा एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी बन जाती है, जिसकी बुनियाद पर ये बात कही जाती कि अब ये दोनों मुल्क जो है जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर हमने जंग छिड़ी तो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें हमारी दोनों की तबाही मुमकिन है। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर में जो रियलिज्म कहा जाता है कि जब बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है, चाहे अलायंसेस के जरिए किसी और जरिए, तो यह मुमकिन है कि बहुत अरसे तक अमन कायम रहेगा। मगर साथ ही साथ ये भी खतरा रहता है कि अगर ये बैलेंस ऑफ पावर टूट गया तो जंग का नतीजा हो सकता है। यानी बैलेंस ऑफ पावर टूट गई तो जंग उसके बाद हो सकती है, जंग उसके बाद शुरू हो सकती है। हकीकत पसंदों यानी रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने हमेशा इस बात को तस्लीम किया है कि बैनुल अक़वामी निज़ाम फितरत की क्लासिक रियासत नहीं है, क्योंकि ताकत, दौलत और वसाइल रियासतों के दरमियान यकसा तौर पे तकसीम नहीं होते हैं। हकीकत पसंद या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये बात रिकॉग्नाइज करते हैं कि बैनुल अक़वामी निज़ाम फितरत की क्लासिक रियासत नहीं है। ये जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस है ये कुदरत की देन नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे मुल्क बहुत पावरफुल हैं, बहुत सारे मुल्क बहुत अमीर हैं, बहुत सारे मुल्क बहुत ज्यादा बड़े हैं हर टेरिटरी लिहाज से, पॉपुलेशन से, और बहुत सारे मुल्क छोटे हैं, कमजोर हैं, उनकी माली या इक्तिसादी हालत बहुत कम है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज उसी कई तरह से भी डिवाइड है। इसलिए ये चीज कहना कि मुल्क हमेशा बैलेंस ऑफ पावर या एक दूसरे के बराबर रहेंगे वो सही नहीं होगा। बड़े अदाकारों को रिवायती तौर पे अजीम ताकतों का दर्जा दिया जाता है, चूंकि बड़े मुल्क है इसलिए उनको हमेशा बड़ा दर्जा दिया जाता है, अजीम ताकत कहा जाता है। जैसे आज हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कहते हैं यूएसए इज अ वर्ल्ड पावर, अ सुपर पावर। Soviet Union, former Soviet Union was also a superpower for some time. China is an emerging power, India is an emerging power. तो ये क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो जितने भी मुल्क हैं ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग लेवल्स पे तकसीम हुए हैं। कोई मुल्क ताकतवर है, कोई मुल्क कमजोर है, किसी मुल्क की इक्तिसादी हालत बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी मुल्क की इक्तिसादी हालत बहुत बुरी है। रियासतों के नतीजे में ये जो दर्जाबंदी है, ये रियासतों के दरमियान जो दर्जाबंदी बैनुल अक़वामी निज़ाम तरतीब का एक पैमाना मसीद करती है, जिससे इस कंट्रोल की अक्कासी होती है कि अजीम ताकतें तिजारती ब्लॉक्स, असर और रसूख और सरही नवाबादियात के जरिए मातहम पर इस्तेमाल करती हैं। सर्द जंग के दौर में यानी कोल्ड वार के दौर में इसकी वजह एक दो कतबी आलमी निज़ाम पैदा हुए, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन ताकत के ब्लॉक्स दरमियान दुश्मनी पूरी दुनिया में फैल गई। आप ये देखें, अभी कोल्ड वार की बात हम करते हैं, उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो जो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी, दोनों जो डिवीजन था दुनिया का वो दो मुल्क डिटरमाइन कर रहे थे, दो मुल्क उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, ताहम हकीकत पसंदों का ये दलील देने के लिए तैयार किया गया है कि वो कतबियत ने अमन को बरकरार रखने में मदद की, क्योंकि फौजी अखराजात में इजाफे से जौहरी रोकथाम का एक मौसर निज़ाम शुरू हुआ। खास तौर पे मास डिस्ट्रक्शन जो वेपन पर जब 1960 की दहाई में बाहमी तौर पे यकीनी तबाही शर्त को तस्लीम किया गया, कबूल शुदा कवायद और तस्लीम शुदा अमल पर मबनी एक मुस्तकम दर्जाबंदी ने इस तरह इंतशार को दूर रखा। इसने हकीकत पसंदों को इस तरमीम शुदा नजरिए को अपनाने की तरगीब दी, जिसने इंतशार पसंद मुआशरे करार दिया। हेडली बुल का मानना है असल में। तो आप देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है उसकी वजह से पीस या अमन कायम रहता है, मगर उसमें यह भी
खतरा लाक रहता है कि जब ये बैलेंस ऑफ पावर खत्म होगा तो जंग हो सकती है। तो कोल्ड वॉर हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। जब दोनों मुल्क एक दूसरे के तकरीबन बराबर थे तो जंग हुई नहीं, बल्कि वो कभी जंग नहीं कर पाए क्योंकि दोनों मुल्क बराबर थे। दोनों मुल्क वेपन्स के हिसाब से बराबर है, दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों मुल्कों को बहुत ज्यादा सपोर्ट था। इसीलिए वो उनके दरमियान जो भी दुश्मनी थी वो सिर्फ कोल्ड वॉर यानी सर जंग तक महदूद है, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम हॉट वॉर में शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए, तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा खतरा था। मगर साथ ही साथ ये भी खतरा लाक रहता है कि इन केस ये दोनों मुल्क जो है ये इनकी बैलेंस ऑफ पावर खत्म होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो जंग लाक हो सकती है। आप देखिए अभी जो है कई चाइना या यूएसए या चाइना या इंडिया जंग नहीं करते हैं, इसके बावजूद कि दोनों के दरमियान काफी ज्यादा इंतशार है, बॉर्डर पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है, मगर उसके बावजूद चाइना और इंडिया जंग नहीं करते क्योंकि दोनों बैलेंस ऑफ पावर, दोनों एक दूसरे के बराबर है तकरीबन, दोनों एक दूसरे को के लिए पूरी तबाही का बायस बन सकते हैं। 1970 और 1900 की दहाई के दौरान नव हकीकत पसंदी यानी जिसे कभी कभी नया साख्ती हकीकत पसंदी कहा जाता है, वॉल्टर ने और दीगर के जेर असर तैयार हुआ, जिसकी नव हकीकत पसंद ताकत की मरकजी अहमियत को तस्लीम करते रहते। वो इनफरादी रियासतों के अहदाफ और मेकअप के बजाय बैनुल अक़वामी निज़ाम की साख्त के लिहाज से वाक़अत की वजाहत करते हैं। इस बात का खुलासा करते हैं कि बहुत से हकीकत पसंद जो अब असल में मैं एक मिसाल आपको दे सकता कि जो दुनिया है, दुनिया में जो जितने भी इंसान हैं, ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से इंसान हमेशा अपने मफाद की बात करता है। इंसान खुदगर्ज है, इसलिए ये जो मुल्क है इसी तरह खुदगर्ज है, वो हमेशा से ही अपना जो है जस्टिफाई करता है। तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमेशा अपने मफाद को हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। ये क्रक्स है, एसेंस है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का। अब इसमें कुछ जो है टेनेट्स है या आप कहें एलिमेंट्स है। केगली और विटकॉफ दो अहम स्कॉलर्स है जिन्होंने रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के कुछ अहम एलिमेंट्स की बात की। पहला वो कहते हैं कि तारीख इस्तिसादात का मुताला कि इंसानियत फितरतन गुनहगार है। पहला एलिमेंट जो कहते हैं, जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की कुछ जो एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स है या अनासर है, उसमें सबसे पहला जो है कि ये अगर आप वो कहते हैं कि जब आप हिस्ट्री देखते हैं तो इंसान या इंसानियत हमेशा उसकी फितरत जो है वो गुनाहगार है। वो हमेशा सिर्फ अपने खुदगर्ज फायदे के लिए देखता है। ये एक पहली बुनियाद है। तो ये तस्वुर करना कि इंसान अमन कायम करेगा, इंसान दूसरे के बारे में सोचेगा, ये गलत बात है। दिस इज व्हाट रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज। दिस वो कहते हैं कि सबसे पहली बात कि तारीख जब हम देखते हैं तो जो इंसान है, जो मुल्क है, सिर्फ हमेशा अपने मफाद के लिए काम करते हैं और वो हमेशा अपने मफाद को हासिल करने के लिए कई गलत भी करते हैं, मॉरली अनजस्टिफाइड भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तवक्का करना कि इंसान या मुल्क या ममालिक अमन कायम करेंगे, वो गलत है। दूसरा वो कहते हैं कि इंसान के तमाम बुरे तरीकों में कोई गुनाह इससे ज्यादा मुरवजा या ज्यादा खतरनाक नहीं है कि इसकी ताकत की जबलत की होश, अपनी साथियों पर गलबा हासिल करने की ख्वाहिश। वो कहते इंसान चूंकि हमेशा से अपने फायदे के लिए देखता है, इंसान की दूसरी फितरत यह है कि वो हमेशा से दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये फितरती ये कुदरती कानून है, इसको हम बदल नहीं सकते कि इंसान खुदगर्ज है, वो अपना मफाद देखता है, इंसान हमेशा से अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है, इंसान हमेशा से दूसरे मूल या दूसरे रिश्तेदार दोस्तों पे गलबा हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप देखिए रशिया और यूक्रेन वॉर, जंग की कोई बड़ी वजह नहीं थी, मगर रशिया ने हमला किया। यह एक तरह से एक मुजाहिरा है किसका?
वो अपने गलबा जो हासिल करना चाहते हैं यूक्रेन पे, इसकी वजह से उन्होंने ये जंग शुरू की। तो ये दूसरा है। तीसरा वो कहते हैं कि अगर इस नाकाबिल तलाफी और नागजीर इंसानी खुशियत को तस्लीम कर लिया जाए तो हकीकत पसंदी इस माने पे तरक्की अमन। वो कहते हैं कि चूंकि ये दोनों चीजें जाहिर है और कुदरती कानून है, इसलिए ये तस्लीम करना कि दुनिया में अमन कायम होगा, ये गलत होगा। ठीक है। सो तीन चीजें अभी तक मैंने की जो बेसिक कंपोनेंट्स कहा जाता है रियलिज्म का। एक, हिस्ट्री देखिए, उसमें हमेशा इंसान अपने फायदे के लिए करता है। दूसरा, इंसान हमेशा दूसरों पे गलबा हासिल करना चाहता है। तीसरा, कि हकीकत पसंद इस मानी तरक्की, हमेशा अपनी तरक्की चाहता है और हमेशा से कि जंग को जंग के जरिए खत्म करना चाहता है। चौथा, ऐसे हालात, चौथा कि ताकत की जरूरत को खत्म करने की उम्मीद रखता है कि ऐसे हालात में बैनुल अक़वामी सियासत इक़्तिदार की जदोजहद सबके खिलाफ सबकी जंग है, कि अपना गलबा हासिल करने के लिए हमेशा से ही जंग और जदोजहद में शामिल होता है। पांचवा, इस माहौल में हर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है जिस मकसद के तहत दीगर तमाम कौमी मकासद को मातहत किया जाना चाहिए, कौमी मफाद को फरोग देना है, जिसकी वजाहत इक़्तिदार के हुसूल के हवाले से की गई है। छठी, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कुछ करने से कौमी मफाद की बेहतरीन खिदमत की जाती है। सातवीं, बैनुल अक़वामी सियासत बुनियादी खुसूसियत पे हर रियासत से ये तकाजा करती है कि वो किसी दूसरे पे भरोसा न करे, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि वो कभी भी बैनुल अक़वामी तंजीम या बैनुल अक़वामी कानून को अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले न करे। ठीक है। और आठवीं, कौमी मफाद खुद को फरोग देने की जरूरत है, बुनियादी तौर पे मुमकिन दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए फौजी सलाहियतों के हुसूल के जरिए। ठीक है। और नौवीं, इत्तेहादियों को हासिल करके अपने दिफा की सलाहियत में भी इजाफा किया जा सकता है, बशर्ते कि इन पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंसार न किया जाए। और 10वीं, अगर तमाम रियासतें ताकत की तलाश करती हैं तो अमन और इस्तेहकाम खुद गर्जी से चलने वाले सयाल इत्तेहाद के निज़ाम के जरिए चुकना करने वाले ताकत के तवाजुन के अमल के जरिए को हासिल किया जा सकता है। असल में ये 10 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जस्टिफाई होता है, या जिसकी बुनियाद पे रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जस्टिफाई होता है। इनका सभी का यही मानना है, इन सभी कंपोनेंट्स में इस बात पे जोर देती है कि एक, कि मुल्क अपने फायदे के लिए हमेशा देखता था। दूसरा, कि ये मॉरल वैल्यूज पे कमजोर देते हैं। तीसरा, क्या अपने फायदे के लिए हमेशा देखना और उस फायदे को हासिल करने के लिए वायलेंस भी जस्टिफाई होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया में अगर वायलेंस जस्टिफाई होती है तो वो सिर्फ स्टेट के पास है। वायलेंस इस्तेमाल करना सिर्फ स्टेट के पास उसकी जस्टिफिकेशन है, बाकी किसी के पास नहीं। सियासी हकीकत पसंदी इस दुनिया में मुतलका दिखाई देती है जहां दूसरों के महरकात पर शक का राज था और जहां अमन के इम्कानात रोशन नहीं थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सुपर पावर दुश्मनी की तरक्की और मशरकी और मगरबी ब्लॉकों के दरमियान सर्द जंग के नाम पे आलमी सतह पर इसकी तौसी, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाली एटमी हथियारों का फैलाव, दुनिया भर में बज़ाहिर मुसलसल हंगामा आ रहा है। ये तमाम अलामात हकीकत पसंदाना नजरिया की गवाही देते हैं। जब हम देखते हैं कोल्ड वॉर की हिस्ट्री या जब हम देखते हैं उससे पहले की दुनिया, तो ये बात जाहिर होती है, बिलाशुबा ये जाहिर होती है कि दुनिया जो है, जो हकीकत है कि एक मुल्क दूसरे पे हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वरना आप देखिए, रशिया जब कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत यूनियन जो था दुनिया का एक हिस्सा था, एक जगह था।
अमेरिका दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से पे था, दोनों में कोई डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं थे, दोनों एक दूसरे के लिए उस हिसाब से खतरा नहीं थी, दोनों अपनी जगह पे ठीक थे, दोनों के इक्तिसादी हालत, बट उसके बावजूद जो है शक की बुनियाद पे जो है वो एक दूसरे के लिए खतरा बने थे। अमेरिका को लग रहा था कि सोवियत यूनियन अपन मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करे या दुनिया को डोमिनेट करे, और सोवियत यूनियन को वही लग रहा था कि अमेरिका जो है अब दुनिया पे राज करना चाहता है। तो इस शक की दुनिया में तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। वरना अगर हम देखें, एक नॉर्मल इंसान देखे, आप इन चीजों को देखिए, एक बहसती इंसान आप सोचिए कि अगर कोई इंसान तरक्की करता है उसके लिए कोई दूसरे के लिए वो खतरा नहीं है, मगर चूंकि शक है, यही शक जो है दुनिया बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कई बार जंग का बायस भी बन जाता है। वरना यूक्रेन अपनी जगह पे ठीक था, वो अपने मुल्क को ताकत दे रहा था, अपने मुल्क को मजबूत कर रहा था। चूंकि रशिया को शक हुआ कि कहीं ये जो अमेरिका यूक्रेन के जरिए मुझ पे डोमिनेट ना हो जाए, वो मेरे जमीन के इस हिस्से में जहां मैं हूं वहां ना आ जाए, उसकी वजह से उसने पहले ही जो है यूक्रेन पे हमला किया। बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था रशिया पे, मगर उसके बावजूद उसने अपने दिफा की बुनियाद पे यूक्रेन पे हमला किया। यही वजह थी कोल्ड वॉर की। ठीक है, ये राय कि एक खतरनाक, ये तमाम अलामात हकीकत पसंद नजरिए की गवाही देते हैं। ये जो शक है इस बेसिकली एंडोर्स करते हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, जिसमें इस बात पे जोर दिया था कि हमेशा एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हावी होना चाहता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ये राय कि खतरनाक बैनुल अक़वामी माहौल में खारजा पॉलिसी को मुल्की मसाइल और तरक्की कार तरजीह दी जाती है। ठीक है, ये राय भी बहुत से लोगों के लिए मौजू थी। इस तरह दूसरी जंग अजीम के बाद दौर में जो है सियासी हकीकत पसंदों की तरफ दुनिया की जो तस्वीर पेश की गई, इसने बहुत से अहले अमल के जहनों को मसहूर कर दिया। दिस ये जो सभी मैंने कहा था, ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन्हीं पॉइंट्स पे की उसकी बुनियाद है। रियलिस्ट, मैं समराइज करूंगा जो मैंने अभी तक किया। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो अहम स्कूल्स ऑफ थॉट माने जाते हैं। आइडियलिज्म मॉरलिटी पे जोर देता है, आइडियलिज्म मॉरल वैल्यूज पे जोर देता है। आइडियलिज्म ये कहता है कि दुनिया में पीस वगैरह कायम है। उसके बरक्स जो है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो रियलिज्म पे जोर देता है, वो हकीकत पे जोर देता है, वो इस बात पे जोर देता है कि हर मुल्क अपने दिफा के लिए, अपने मफाद के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। वो कहता है कि दुनिया में ये इंसान, चूंकि इंसानी फितरत हमेशा से खुदगर्द है, हमेशा से अपने मफाद के लिए देखती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में अमन कायम हो जाए या दुनिया में मॉरल वैल्यूज की रहनुमाई हो जाए, क्योंकि इंसान हमेशा अपने फायदे की तरफ देखता है। तो उस हिसाब से जंग को खत्म करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हर वक्त एक मुल्क दूसरे मुल्क के पे हावी होने की कोशिश करेगा, हर मुल्क दूसरे मुल्क पे शक की नजर से देखेगा, और इस इंतशार में ये हमेशा पॉसिबल है कि इन जंग का खतरा हो। तो दोनों जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और रियलिस्ट स्कूल ऑफ, दोनों एक दूसरे के बरअक्स है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रियलिज्म जो हकीकत पसंदी का थॉट है, जो मॉरल वैल्यूज को नजरअंदाज करता है, जो खुदगर्ज इंसान की बात करता है, जो खुद मुल्क की दिफा की बात करता है, जो रियलिस्ट पॉलिटिक्स की बात करे, उसके बरक्स आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो इन चीजों से अलग है, जो कहता है कि इंसान को मॉरल वैल्यूज पे जोर देना चाहिए, मॉरल वैल्यूज हमारे एक्शंस और हमारी रहनुमाई करनी चाहिए, उससे दुनिया में अमन कायम हो सकता है। मगर रियलिज्म कहता है कि अमन मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो सिर्फ अपनी दिफा के लिए कोशिश करेंगे, अपनी इसी जद्दोजहद में रहेंगे कि वो अपने मुल्क को फायदा पहुंचाए, और जिसकी वजह से हमेशा दुनिया में एक तनाज पैदा हो सकता है, इंतशार रह सकता है।
अब हम इस लेक्चर के दूसरे सेक्शन में हैं जिसमें हम इसकी तनकीद करेंगे, जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने अभी तक डिस्कस किया आपके साथ, उसका क्रिटिसिज्म यानी तनकीद। जरूरी नहीं है कि जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि वही हम उसके साथ बिल्कुल एग्री करें, उसके भी कुछ कम लिमिटेशंस हैं, उसकी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, इसको भी इसीलिए इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो तनकीद का सबसे बड़ा ये है कि मरकजी एतराज से ये कि सियासत को इखलाकियत से अलग करते हैं। जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो है इस रियलिस्ट स्कूल के खिलाफ है, वो इस बात पे जोर देता है कि ये इखलाकियत यानी मोरालिटी को सियासत से अलग करता है, यानी ये इस बात पे जोर देता है मॉरल्स और पॉलिटिक्स दो सेपरेट है, ये दोनों अलग है। तो तनकीद का बुनियाद जो है या मरकज जो है वो इसी पॉइंट पे कि इन्होंने जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, इन्होंने इखलाक या इखलाकियात और सियासत को अलग किया है। तो तनकीद यहीं से शुरू होती है। हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर फौजी कशीदगी और अजीम ताकतों के तसल्लुत पसंदाना अजायम को जायज करार देता है। तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसके खिलाफ ये कि ये जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो इसकी बुनियादी अनासर है, जो इसके बुनियादी कंपोनेंट्स है, वो बड़े मुल्कों की जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया में, उनके तशद्दुद को जो है जस्टिफाई करती है, उनके अजायम को जस्टिफाई करती है। जैसे अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से वो जस्टिफाइड है, मगर आइडियलिस्ट स्कूल कहता है या बाकी जो लोग हैं जो रियलिस्टिज्म से के खिलाफ है, वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि आपने जब अमेरिका ने इराक पे जो दूसरी गल्फ वॉर शुरू हो गया, हमला किया, तो उसमें बहुत सारे इराक को बहुत सारा नुकसान हो गया। उसमें उसने ना ये देखा कि लोग मर रहे हैं या उससे कितनी भूख पड़ेगी उस मुल्क में, उससे कितनी तबाही, वो नहीं, उनने सिर्फ क्या अपने मफाद के बुनियाद पे इराक पे हमला किया और अफगानिस्तान, उससे पहले अफगानिस्तान पर, या अभी रशिया यूक्रेन पे अपने दिफा के लिए यूक्रेन पे हमला किया, लाखों लोग जो है बेघर हो गए, हजारों लोग मर गए, बहुत बड़ी पैमाने पे तबाह हो गई। ये जो रियलिज्म है वो इसको जस्टिफाई कर, क्योंकि ये रशिया ने अपने मुल्क की दिफा के लिए, मगर जो इसका तनकीद है वो ये कहती है कि ये चीज सही, रियलिस्ट स्कूल इन चीजों को एंडोर्स करती है, लेजिटिमाइज करती है। ये नजरिया बताता है कि ताकत की सियासत ने इतना अमन बरकरार नहीं रखा जितना कि दुनिया को एटमी तबाही के दहाने पर खड़ा किया। हकीकत पसंद की दूसरी तनकीद को हुकूक निस्वां के नजरिए साजों ने आगे बढ़ाया है। जो दूसरी तनकीद है हकीकत पसंदी के खिलाफ, वो हुकूकों की बुनियाद पे है। वो लोग या जिनको हम ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स कहते हैं, वो दावा करते हैं कि ताकत की मतलाशी रवैये और कौमी सलामती और फौज का जुनून दुनिया भर में मर्द सियासत दोनों के गलबे की अक्कासी करता है, जिसकी तरजीहात बुनियादी तौर पे जारहाना और मसाबकती है। वो ये जो एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो इस बात पे जोर देते हैं कि जो बड़ा मुल्क है वो हमेशा जारहाना रहता है, जिसकी वजह से जो है वो अपने फौज की एग्जीबिशन करता है, अपनी ताकत की एग्जीबिशन करता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हुकूक निस्वां होते हैं या हुकूकों की पामाली होती है। तीसरा, हकीकत पसंदाना नजरियात की मरकजी तजुर्बाती कमजोरी ये है कि गालिब बैनुल-अक़वामी अदाकार के तौर पे रियासत पे तवज्जो मरकूज करते हैं। तीसरी कमजोरी जो है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो सिर्फ स्टेट पे फोकस करती है, और स्टेट के अंदर वो इंसान, लोग या इंसानियत, उन चीजों को नजरअंदाज करती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो कहा जाता है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, ये जोर देती है किस बात पे? स्टेट पे, इसका मरकज स्टेट है, तो बाकी चीजें जो है स्टेट के अंदर जो लोग हैं वो इनके लिए माने नहीं रखते, चूंकि ये इसी बात पे जोर दे रहे स्टेट का दिफा, स्टेट का फायदा, मुल्क का फायदा। तो मुल्क में जो लोग रहते हैं या दुनिया में जो लोग रहते हैं, वो जो मॉरल वैल्यूज पे
عمل کرتے ہیں उसको ये बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं. ये एक और कमजोरी है जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ कही गई है. जो लोग इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट सिर्फ उनका मरकज है स्टेट, उन्होंने 20वीं सदी के आखिर में आलमी सियासत के चेहरे को नई शक्ल देने वाली तकसीरी रुझानात को नजरअंदाज कर दिया. इस तरह क्लासिकी हकीकत पसंदी ने बुनियादी तौर पे नव हकीकत पसंदी को रास्ता दिया. असल में इसी वजह से जो न्यू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वजूद में आया. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हकीकत पसंदी या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सिर्फ स्टेट का फायदा देखता है, नेशन का, मुल्क का फायदा देखता है, न कि मुल्क में रहने वाले लोग. और जब ये मुल्क का फायदा देखते हैं तो उसमें बाकी चीजें जो है नजरअंदाज हो जाती है. रॉबर्ट टैकर ने मॉर्गन्थो के तरीके कार पर तनकीद की क्योंकि यह खुद और हकीकत से मुताबिक नहीं रखता है. रॉबर्ट टैकर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर है. उसने मॉर्गन्थो जिसने रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का एक की बुनियाद डाली, उसके खिलाफ उस पे तनकीद की. अब जो चीजें ये भी कहा जाता है जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट उसकी वजह से बहुत सारी दुनिया में इंतशार है, या कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या की वजह से कुछ चीजें जो दुनिया में लगातार है. ठीक है, मॉर्गन के नुक्ते नजर पे एतराज की बहस का नजर, जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की वजह से जो चीजें हैं वो हमेशा से कंटिन्यू हो रही है. एक ताकत जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ताकत, पावर हमेशा वाहिद मुहर्रक नहीं है. जो तनकीद करते हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वो इस बात पे जोर देते हैं कि हम जरूरी नहीं कि एक मुल्क हमेशा ताकत का मुजाहरा करे, या एक मुल्क सिर्फ ताकत की बुनियाद पे नहीं रहता. मतलब मुल्क में सिर्फ ताकत नहीं, मुल्क में बहुत सारी चीजें मुसलसल जंग की तरफ ले जाता है. दूसरा ये कि जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है ये ऐसा एक थॉट है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो दुनिया में हमेशा मुल्कों को जंग की तरफ लेता है. यानी वो बातें कहता है या उन बातों पे अमल करने के लिए जोर देता है जिसकी वजह से दुनिया में हमेशा जंग का समा रहता है. यानी हमेशा से ही मुल्कों के दरमियान इंतशार पैदा होता है. ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म मैंने बहुत सारे, उसमें कुछ चीजें जो है जो क्रिटिक्स ने या जो तनकीद करने वाले हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को, उनने कुछ बातों पे जोर दिया है जो वो कहते हैं कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की वजह से जारी है. पहला कि हर मुल्क अपनी ताकत का मुजाहरा करता है. ठीक है, और जब मुल्क मुजाहरा करता है तो उसमें एक तरफ से जो है बाकी चीजें जो है मुल्क की वो नजरअंदाज होती है. आप देखिए दुनिया में जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, खासकर बड़े मुल्क, वो साल में एक बार अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं. इंडिया में रिपब्लिक डे, रशिया में रिसेंटली अपनी ताकत का मुजाहरा किया मुल्क का, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, हमेशा यूएसए में 4 जुलाई हम वो इस दिन अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं. ये ताकत का मुजाहरा किसकी देन है? ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ की देन है. तो ये जो चीजें हैं, ये एक मुजाहरा जो है ये एक इंतशार पैदा करता है और इससे बाकी चीजें जो है मुल्क की नजरअंदाज होती है. आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुल्क ने अमन के लिए कोई रैली शुरू की, या कोई मुल्क जो है इसलिए रैली निकालता है कि वो कहता है कि अमन में पीस होना चाहिए. ऐसा कभी नहीं. हाँ, अपनी ताकत का मुजाहरा होता है कि मेरे पास इस साल हमने इतने मिसाइल्स बनाए, इस साल हमारे पास ये नया आया, इस साल हमारी वेपनरी में ये शामिल हो, ये तो मुजाहरा होता है. मगर बाकी चीजें जो है उसके बरक्स उसका कभी कोई मुल्क मुजाहरा नहीं करता. दूसरी जो है तनकीद जो कहता है कि वो कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से दुनिया में हमेशा जंग का समा रहता है. एक एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि जहां पे हमेशा इंतजार रहता है, इंतशार रहता है, और हमेशा ये लगता है कि मुल्क में कि कभी भी जंग हो सकती है. ये कौन प्रोपेगेट करता है, किसकी वजह से? ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट.
کیونکہ یہ اس چیز پہ ہی زور دیتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے مسل پاور کی ضرورت ہے۔ تیسرا، انسانی فطرت کا غلط تصور، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ، یہ ہمیشہ سے ہی انسانی فطرت کا غلط تصور دیتا ہے، کیونکہ میں نے پہلی شروعات میں ہی کہا تھا کہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی ایک اہم بنیاد اس پہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے بات کرتا ہے، اپنے فائدے کے بارے میں کہتا ہے، اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی انسان صرف انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تو کرٹیکس کا یہ ماننا ہے کہ یہ غلط تصور ہے۔ انسان ہمیشہ غلط نہیں سوچتا، انسان ہمیشہ اپنے بارے میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ دوسروں کے بارے میں۔ کئی سارے دنیا میں لیڈرز رہے جو صحیح یا مورل ویلیوز پہ زور دیتے، تو یہ کہنا جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہنا کہ انسان ہمیشہ خود غرض ہے، انسان ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ اس بات کو پروپیگیٹ کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ انسان ہمیشہ فطرتاً غلط نہیں ہے، وہ دوسروں کے فائدے کے بارے میں بھی سوچتا ہے، وہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ انسان صرف اپنے فائدے کے بارے میں دیکھتا ہے، وہ غلط ہے۔ اور یہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ انسان کے تصور کو ہمیشہ، انسان کی امیج کو، انسان کی تصویر کو ہمیشہ غلط طریقے دکھاتا ہے۔ وہ انسان کو ہمیشہ ایک خود غرض دکھاتا ہے، وہ انسان کو ہمیشہ صرف ایک ایسا جانور دکھاتا ہے جو صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور یہ کرٹیکس کا ماننا ہے، یہ غلط بات ہے۔ بہت سارے انسان مورل ویلیوز پہ زور دیتے، بہت سارے انسان اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ کئی بار انسان دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کام کرتا ہے، یا ملک دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا، چونکہ یہ سب چیزیں، اس لیے دنیا میں ہمیشہ تضادات بھرپور رہے۔ یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی پروپیگیشن ہے، اس سے دنیا میں ہمیشہ تضاد رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اب آج دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ سے زیادہ انفلوئنس ہے یا مائل ہے۔ اسی لیے دنیا میں زیادہ انتشار ہے، اسی لیے دنیا میں زیادہ جنگی ہو رہی ہے، اسی لیے دنیا میں کنفلکٹس ہے، ڈسپیوٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے پچھلے 100 سال یا 100 سال کی ہسٹری دیکھیے، دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو گئی، لاکھوں لوگ مر گئے، اور بے شمار جو ہے تباہی ہو گئی، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ڈسپلیس ہو گئے، ریفیوجی بن گئے، اور ایسی تباہی ہو گئی کہ آج بھی اس تباہی کی بھرپور یہ کمپنسیشن نہیں ہو رہا۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ، کیونکہ سبھی ملک جو ہے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو اپروچ کرتے، اڈیپٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کولڈ وار شروع ہو گیا، اس میں بھی بہت زیادہ تباہی، اور اس کے بعد دیکھیے ہر ریجن میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، ہندوستان، پاکستان، ساؤتھ ایشیا میں، چائنا انڈیا ڈسپیوٹ، اب یوکرین رشیا ڈسپیوٹ، یا یوکرین رشیا کے بہت سارے ملکوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، یورپ میں بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں ملکوں کے درمیان، یا بڑے پیمانے پہ دیکھیے ڈسپیوٹ چائنا اور رشیا کے درمیان، ڈسپیوٹ یا تناؤ جو ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، امریکہ چائنا اور ہندوستان کے درمیان۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ سبھی ملک جو ہے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو اپروچ کرتے، اڈاپٹ کیا ہے۔ کوئی بھی ملک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہ پیس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ تنازع اور تناؤ زیادہ رہتا ہے، کیونکہ سبھی ملک دوسرے ملکوں پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ چائنا بھارت پہ حاوی ہونا چاہتا ہے، اس لیے تناؤ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھارت بہت سارے ملکوں پہ حاوی ہونا چاہتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس لیے بہت سارے ملکوں کے ساتھ تناؤ۔ ٹھیک۔ امریکہ پوری دنیا پہ دنیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس لیے تناؤ۔ امریکہ کو خطرہ ہے کہ چائنا ڈومینیٹ کرے گا ایشیا کو یا ایشیا پیسیفک ریجن کو، اس لیے امریکہ اور چائنا کے درمیان تناؤ۔
یہ جو تناؤ کی دنیا ہے یہ پہلے سے ہی ہے اور آج اور جاری ہے اور جاری رہے گی، کیونکہ وہ سبھی ملک ریئلسٹ اپروچ کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں یا ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو اڈاپٹ کیا ہے، سبھی ریئلزم کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے. سو میں پورے لیکچر کو پھر ایک بار پھر سمرائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے آپ ریئلزم یا ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو اردو میں حقیقت پسندی کہتے ہیں. اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ دنیا میں وی شوڈ آلویز بی ریئلسٹک ان آور اپروچ. آپ آئیڈیلسٹک کے بالکل خلاف ہے. یہ جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے جو آئیڈیلزم کے بالکل خلاف ہے. یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ انسان یا ملک جو ہے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. انسان کو ہمیشہ سے ہی مورل ویلیوز کو چھوڑ کے ریئلزم پہ زور دینا چاہتا ہے. حقیقت جو ہے اسی پہ زور دینا چاہتا ہے اور اس حقیقت میں طاقت کا مظاہرہ آتا ہے. اس حقیقت میں دوسرے ملک پہ غلبہ ہونا یا اس کی جدوجہد کرنا شامل ہے. اس حقیقت پسندانہ کا اہم جز یہ بھی ہے کہ اپنے طاقت کی نمائش ہونی. اس پہ یہ بھی ہے کہ آپ کہ دنیا خود غرض ہے. دنیا کی ملک جو ہے صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنا فائدہ دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں جن پہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے بنا ہے. اس کے دو اہم جو اسکالرس ہیں وہ ای ایچ کار ہے اور ہینس مارگنٹو ہے. دونوں اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو ریئلزم ہے وہی حقیقت ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ سے کام کیجئے. آپ دوسرے ملک پہ جسٹ حملہ کریں گے وہ بھی ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے حساب سے جسٹیفائڈ ہے. آپ اپنے دفاع کے لیے کوئی ایکشن لے سکتے وہ اس بات پہ بھی اس بات کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ مورل ویلیوز کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہمیشہ سے اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا ہے. ان کا ماننا ہے کہ جو مورل ویلیوز کبھی پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے جو بیسک چیزیں ہیں، جو بیسک ٹینٹس ہے ریئلزم میں، ان میں سب سے پہلا یہ کہتے ہیں کہ تاریخ آپ دیکھیے، ہسٹری آپ دیکھیے، اس میں یہ آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کے خلاف جنگ چھیڑی ہے اور وہ حقیقت بھی ہے. ہمارے پاس بہت مثالیں ہیں. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کولڈ وار، اب نئی جنگیں جو ہو رہی ہے یا تناؤ جو ہو رہا ہے وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ملک ہمیشہ سے ہی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتا ہے، سوچتا ہے. اس لیے ریئلزم اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ملک کے درمیان امن ہوگا کیونکہ ہر ملک اپنے دفاع پہ کرتا ہے. ہر ملک دوسرے ملک کو شک کی طرح نظر سے دیکھتا ہے. دوسرا اہم پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے تمام برے طریقوں میں کوئی گناہ اس سے زیادہ وہ جو ہے ہمیشہ اپنے دوسرے ملک پہ حاوی ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کام کرتا ہے، ہمیشہ اپنے ملک کی طاقت کی نمائش کرتا ہے، ہمیشہ اس جدوجہد میں رہتا ہے کہ وہ دوسرے پہ حاوی ہو جائے. اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وہ کوئی بھی ایکشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتحاد جو بیلنس آف پاور وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اب صرف اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے، اور جب یہ بیلنس آف پاور ٹوٹ جاتا ہے تو جنگ کا خطرہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ ریئلزم جو ہے اس کی تنقید بھی ہوئی. ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ جو ریئلزم ہے اس کو آپ پوری طرح سے اس کے ساتھ ایگری کریں. اس کے خلاف بہت زیادہ تنقید ہوگی، ہر تھاٹ کے ساتھ تنقید ہوگی. جب ہم آئیڈیلزم پڑھیں گے اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ آئیڈیلزم کے خلاف بھی تنقید، اور یہ انسانی فطرت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. اسی لیے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی بھی تنقید ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے. سب سے جو مرکز ہے اس تنقید کا وہ اس بات پہ ہے کہ یہ مورل ویلیوز کو یا اخلاقیات کو نظر انداز کرتا ہے، اس پہ زور ہی نہیں دیتا ہے. اور جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے
जो है अजीम ताकतें या बड़े मुल्क जो है अपने वायलेंस या अपनी डोमिनेशन को जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमेशा तनाव रहता है, ताकत की ये सियासत ने इतना अमन बरकरार नहीं रख पाते हैं, मुल्क दुनिया में अमन नहीं रहता है, क्योंकि वो सभी रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, ठीक है। दूसरी तनकीद इस बात पे है कि कि इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, बड़े पैमाने पे डिस्प्लेसमेंट होती है, बड़े पैमाने पे तबाही होती है, छोटे मुल्कों का नुकसान होता है, छोटे मुल्क जो है वो अपने आप को वजूद में नहीं ला पाते हैं, बड़े मुल्कों का गलबा रहता है पूरी दुनिया पे। और उसकी मिसाल हम देखते हैं, हमें दूर नहीं जाने की जरूरत, आप इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देखिए, आप मौजूदा जदीद दौर देखिए, उसमें आप देखेंगे कि जो भी बड़े मुल्क है इस दौर के, वो अपने आप को हावी करना चाहते हैं। चाइना पूरे साउथ एशिया पे हावी होना चाहता है, अमेरिका दूर से रहकर ही साउथ एशिया या एशिया पे हावी रहना चाहता है, रशिया यूरोप पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहता है, तभी उसने यूक्रेन पे हमला किया। और उसके बाद अब अच्छा, चाइना ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि वो एशिया पे डोमिनेट करना चाहता है, वो यूरोप की तरफ जाना चाहता है। जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वो क्या है, वो मकसद यही है कि वो यूरोप पे अपना इन्फ्लुएंस जो है जो बढ़ाए। अच्छा, भारत पूरे साउथ एशिया पे हावी रहना चाहता है, और कोल्ड या सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले देखिए जो भी मुल्क थे, जिसमें फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था, वो पूरी दुनिया पे हावी रहना चाहते हैं। तो ये जो है ये हकीकत पसंदी का एक रिफ्लेक्शन है। इस हावी होने के इसकी वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, दुनिया में जंगें होती है, दुनिया में तबाही होती है, ठीक है। छोटे मुल्कों पर बड़े मुल्कों का गलबा रहता है, बड़े मुल्क हमेशा अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, ठीक है। और आप देखिए, इससे जंगें भी होती हैं, तनाव रहता है। और आखिर में मैं ये बात कहूंगा कि ये जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जो मैंने पहले भी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं सिर्फ आपको, ताकि आप सही से समझ पाए, इसमें जो है इसने एक गलत इमेज दी है बहुत सारी चीजों की। एक, इसके आप मुल्क हमेशा इस रेस में लगे हैं। आप देखिए दुनिया में जितने भी बड़े मुल्क हैं, वो अपने बजट का बहुत ज्यादा हिस्सा किस पे सर्व करते हैं, डिफेंस पे। बाकी जो अहम चीजें हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं लोगों के, उस पर कम इन्वेस्टमेंट होता है। बड़ी से बड़ी ताकत देखिए, उसके पास वो हमेशा और उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अमेरिका इतना पावरफुल मुल्क होने के बावजूद हर साल अरबों डॉलर डिफेंस पे खर्च करता है। पाकिस्तान का यही है, चाइना का यही है, रशिया का यही है, भारत का यही है। बाकी जो चीजें हैं उन पे कम एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डिफेंस पे ज्यादा होता है, इसके बावजूद कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की वजह से है। इसकी वजह से दुनिया में हमेशा एक जंग का तनाव रहता है, जंग का खतरा रहता है। तीसरा, इसने इंसानी फितरत को गलत तरह से प्रोपेगेट किया है, इंसानी फितरत का एक गलत तस्वर पेश किया, और आखिर में इससे दुनिया में एक तजाद रहा है। ये था रियलिस्ट स्कूल के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, अपने इस लेक्चर का भरपूर फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।